Hello students. So this is your lecture 11, next lecture, instruction set. So in last class we have discussed the data transfer group instructions and arithmetic type instruction. Okay. So now we will study the logical type of instruction. So basically logical type of instruction are used for the logical manipulation. Okay, and these instructions are performed on bitwise bit operation. Okay, so let us discuss the different logical instructions. So in first in this category, first we will discuss some logical instruction. And later on we will discuss some rotate type instruction. Okay, and next we will discuss the shift related instructions, and after that we will discuss the compare instruction. Okay, so all these are being are under this category, logical type instruction. Okay. One more thing about this logical instruction, that after the execution of this instruction, the flags are affected. All flags are affected. All flags are affected. And these instructions, these are performed on bitwise bit operation. Okay. Bitwise bit. Okay. We discuss करेंगे basically bitwise bit है क्या. Okay. And these are basically used for the logical manipulation. Okay, so now first we will discuss the logical instruction. So first this is logical instruction. Okay, so in this first we have ones complement. वंस कॉम्प्लीमेंट आपको निकालना है बेसिकली, तो क्या हम यूज में लेंगे कि नोट और रजिस्टर या फिर मेमोरी. अब वो रजिस्टर बेसिकली ये आपका 8 बिट का भी हो सकता है या फिर 16 बिट का भी हो सकता है. इट मीन्स बाइट, इट में बी बाइट और इट में बी वर्ड. ओके, सो बेसिकली ये क्या करेगा कि सपोज लेट मी एक्सप्लेन यू this note by using an example. Suppose we have note BL. Okay, so this is what 8 bit register, and now BL is having 2F. Okay, so let move BL, 2F. मतलब 2F किस में चला जाएगा, BL में चला जाएगा. Okay, this is also H because by default this is an hexadecimal. Okay, so BL में अब क्या है, 2F का डेटा है, बेसिकली 2F है आपके पास में, और आपको ये पूछ रहा है कि ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको क्या मिलेगा. ठीक है, सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ BL. सो मैंने बताया कि दिस logical type of instructions are performed bitwise bit. Okay, so 2F can be represented by represented in binary like this 0 0 1 0, and F is what 1 1 1 1. so हर बिट का आप क्या करो कि इन हर बिट को इन्वर्ट कर दो. नॉट गेट का फंक्शन यही तो होता है बेसिकली. नॉट गेट क्या करता है बेसिकली, दिस इज नॉट गेट, only one input. So suppose input is A, then output will be what, A bar. So 0 0 it means 1 1 अगर input है तो output will be 0.
ओके, सो ये अगर आपका BL में स्टोर है तो ये जस्ट आउट आंसर क्या हो जाएगा 1 1 0 1 0 0 0 0। तो इट मीन्स अगर BL का कोई कंटेंट अगर आपको पूछे तो BL का कंटेंट बेसिकली क्या अवेलेबल हो जाएगा BL में D एंड 0, बिकॉज दिस इज व्हाट D एंड दिस इज व्हाट 0। ओके, एंड सपोज आप ये भी परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट सपोज गिवन है नॉट BX, सो ये भी परफॉर्म हो सकता है। इट मीन्स BX का आपके पास में कोई डेटा पहले से कोई अवेलेबल हो, तो सपोज BS का आपके पास में अवेलेबल है 1F 2F 16 बिट डेटा है, और बिफोर एग्जीक्यूशन BX 2F 1F कंटेन कर रहा है। सो आफ्टर एग्जीक्यूशन BX के पास में क्या डाटा होगा बताओ, ये आपके लिए, ठीक है, ये आंसर बताओ आप। नेक्स्ट ऑपरेशन इज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट आपने किया। सपोज सिमिलरली अगर आप टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, टूज कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हो, तो क्या इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे हम, NEZ वही रजिस्टर या फिर मेमोरी, राइट। सो क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा कि जो भी रजिस्टर या मेमोरी का कंटेंट है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट और उसमें +1 ऐड कर दो, और वो स्टोर किस में होगा बेसिकली, जो भी आपका रजिस्टर गिवन है या मेमोरी गिवन है। ओके, सो इस तरह से आपका हो जाएगा परफॉर्म टूज कॉम्प्लीमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट इज और एंड रजिस्टर सिंटेक्स बेसिकली कुछ इस टाइप का होगा, रजिस्टर 2 और मेमोरी 2 कोमा रजिस्टर स्लैश मेमोरी 1, मतलब रजिस्टर 1 मेमोरी 1। ओके, सो देयर में बी 4 possibility। Suppose register 1 to register 2 to register 1, register 2 to memory 1, memory 2 to register 1, and memory 2 to memory 1। So one more thing here, memory to memory, to memory operation is not allowed। okay, similarly हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। So to memory is not allowed। So basically यूज किस तरह से परफॉर्म करेंगे हम, बेसिकली और गेट का फंक्शन आपको पता ही है, ये आपका और गेट, तो लॉजिकल सिंबल और गेट का, ये और गेट, ये A, ये B, ये A+B, तो और गेट का तो बताने की रिक्वायर्ड नहीं है ना, ये आपका A, ये आपका B, ये आपका Y। सो 0 0, सो y इज व्हाट A+B। ट्रू टेबल तो आपको आती होगी, एज्यूम करके चल रहा हूं मैं। तो ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा बेसिकली कि ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा, रजिस्टर मेमोरी 2 में जो कंटेंट है वो, और रजिस्टर, ये डिवाइड बाय नहीं है, ये रजिस्टर और मेमोरी में से कोई भी एक चीज, ठीक है। सो मेमोरी दोनों का क्या हो जाएगा, और डाटा किस में सेव होगा वो है इंपॉर्टेंट। डाटा बेसिकली जो भी डेस्टिनेशन गिवन है ना उसी में स्टोर होगा। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे देखो क्या गिवन है, रजिस्टर 2 और मेमोरी 2 ये गिवन है। सो बेसिकली ये ऑपरेशन आपका परफॉर्म हो जाएगा। ओके, तो इसके लिए एग्जांपल चलो करिए आप लोग। OR AH, BX। अब BX के लिए जो भी डेटा गिवन है वो मैं डायरेक्ट डाटा सेगमेंट BX कैसे फाइंड आउट करोगे, वही
डाटा सेगमेंट इंटू 10H प्लस BX। कौन सी टाइप की एड्रेसिंग है, बताओ कौन सी टाइप की एड्रेसिंग है, बता रखा है मैंने। डायरेक्ट एड्रेस गिवन है कि इनडायरेक्ट गिवन है? इनडायरेक्ट गिवन है, किसमें? BX में, रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। और AH का जो कंटेंट है वो है इसमें 04। तो बताओ आंसर कि क्या होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज एंड, एंडिंग करना। सो वही आप इंस्ट्रक्शन आज यूज में लेंगे, एंड और रजिस्टर स्लैश मेमोरी 2 और रजिस्टर स्लैश मेमोरी ऑफ 1, कुछ इस तरह से। मतलब क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, रजिस्टर स्लैश मेमोरी 2 का कंटेंट और एंड हो जाएगा किसका, इन दोनों का एंड हो जाएगा, मतलब रजिस्टर और रजिस्टर 2 और रजिस्टर 1 या रजिस्टर 2 मेमोरी 1 का, इनका एंड होके और बेसिकली डाटा जो है वो स्टोर होगा किसमें, आपका डाटा स्टोर होगा REGMEM2, जो कि डेस्टिनेशन गिवन है। ये डेस्टिनेशन होता है बेसिकली, ये सोर्स होता है। सो डाटा बेसिकली इसमें स्टोर होगा। सेम ऑपरेशन जो आपने अभी और में किया है बेसिकली। और यूज क्यों करते हैं इसको, बेसिकली यूज हम बेसिकली करते हैं इसका मास्किंग पर्पज में। मतलब कोई किसी भी सेलेक्टेड बिट को अगर आपको क्लियर करना है, सो वो प्रोसेस, उस प्रोसेस को बोलते हैं मास्किंग, बिट मास्किंग। सो बेसिकली एंड ऑपरेशन इज यूज टू क्लियर द बिट, स्पेसिफिक बिट। क्लियर बिट का मीनिंग क्या होगा, चलो मैं एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। सपोज ये डेटा है 2F, अगर आप, ये हेक्साडेसिमल में गिवन है। सपोज इस बिट को आपने क्या करना है, क्लियर करना है। तो आप क्या करो कि 2F और F0H इसका एंडिंग करो, देखो क्या आता है। 2 को कैसे लिखोगे आप, 2 को लिखोगे आप 0010, F को कैसे लिखोगे 1111, F को क्या लिखोगे फिर 1111, 0 को क्या लिखोगे 0000। एंड करो, एंड बिटवाइज बिट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो 10 का क्या होगा 0000, इसका क्या होगा 01 का फिर से 011 का 1, ये 0 और 0, क्या मिला आपको यहाँ पे 2 और यहाँ पे मिला 0, मतलब 2 और 0। इस बिट को आपने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया बेसिकली। सो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, मास्किंग। मास्किंग के लिए आप इसको यूज करते हैं वैसे, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव XOR, XOR, रजिस्टर मेमोरी 2, रजिस्टर मेमोरी 1। अब आपको पता है कि इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, इसमें XOR ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा बेसिकली। और XOR आपको पता ही है, ठीक है। सेम इनपुट अगर आपने अप्लाई किया तो 0, और बाकी इसके अलावा जो भी आपने इनपुट अप्लाई किया है 0 1 या 1 0, सो आउटपुट हाई होगा आपका, ठीक है। सो XOR गेट आपका ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, सेम ऑपरेशन, और डाटा बेसिकली रजिस्टर और मेमोरी 2 में स्टोर हो जाएगा। और यहाँ भी वही कंडीशन की मेमोरी टू मेमोरी, सो इस टाइप का ऑपरेशन आपका रिक्वायर्ड नहीं है, डिजायरेबल नहीं है, ये नहीं करना आपको परफॉर्म, ओके। नेक्स्ट कैटेगरी इज रोटेट। सो रोटेट टाइप इंस्ट्रक्शन। सो इसमें बेसिकली आपके हमारे पास में दो कैटेगरी है, विद कैरी फ्लैग, विद CA मतलब विद कैरी फ्लैग, और विदाउट कैरी फ्लैग। सो रोटेट विद कैरी फ्लैग, रोटेट विदाउट कैरी फ्लैग। अभी पढ़ते हैं कि किस तरह से। सो फर्स्ट इज व्हाट, RCR रजिस्टर कॉमा मेमोरी, ओके, एंड कॉमा। कितनी बार रोटेट करना है वो आपका यहां पे लिखा जाएगा। फर्स्ट 1 मतलब
1 टाइम आपको रोटेट करना है तो 1 लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये रजिस्टर जो बेसिकली है वो रजिस्टर आपका, ये आपका 8 बिट का भी हो सकता है, ये आपका 16 बिट का भी हो सकता है। अब मेमोरी आपकी क्या हो सकती है, मेमोरी के लिए अगर मैं बोलूँ तो मेमोरी आपकी बाइट हो सकती है, मेमोरी आपकी वर्ड में गिवन हो सकती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो 1 बिट रोटेशन होगा, दिस इज व्हाट 1 बिट रोटेशन, क्योंकि आपने यहाँ पे क्या स्पेसिफाई किया हुआ है 1, ठीक है। सो सपोज अभी मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ वो बाइट ऑपरेशन कंसीडर कर रहा हूँ, तो क्या बेसिकली परफॉर्म होगा, RCR, रोटेट इन राइट विद कैरी। सो ओके, सो इसकी अगर फुल फॉर्म बोलूं तो देखो, रोटेट, सी का मतलब कैरी, ठीक है, किस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, और इसको लिखा कुछ इस तरह से जाएगा, रोटेट राइट थ्रू कैरी, इस तरह से लिखा जाएगा इसको, ठीक है। तो रोटेट तो होगा किस डायरेक्शन में होगा, राइट डायरेक्शन में होगा, और विद यूजिंग कैरी, तो विद यूजिंग कैरी, ठीक है। सो सपोज अभी मैं डिफाइन करता हूं कि ये आपके पास में 8 बिट का रजिस्टर कुछ इस टाइप से गिवन है, this is what suppose A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0, ठीक है। किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, राइट, तो राइट किस डायरेक्शन में होगा, राइट हैंड की साइड, मतलब क्या होगा, A7 का डाटा किस में जाएगा, A7 का डाटा आपका A6 में जाएगा, A7 का डाटा A6 में, A6 का डाटा किस में जाएगा, A6 का डाटा जाएगा A5 में, A5 का डाटा किस में जाएगा, A5 का डाटा जाएगा A4 में जाएगा, A4 का डाटा किस में जाएगा, A3 में जाएगा, A3 का डाटा किस में जाएगा, A2, A2 का A1, A1 का A नोट। अब A नोट का जो डेटा है वो किस में जाएगा, रोटेट किसका यूज करके करना है, कैरी, तो मतलब यहां पे जो कैरी फ्लैग है, सो कैरी फ्लैग में ए नोट का डेटा जाएगा। और नेक्स्ट अब क्या होगा, A7 में अभी तक डाटा नहीं है, तो A7 में डाटा कहां से आएगा, A7 में डाटा आपका आएगा कैरी फ्लैग में, जो भी डाटा होगा वो किस में चला जाएगा, आपका A7 बिट में चला जाएगा। समझ में आया आपको कि इस तरह से डाटा रोटेट होगा राइट डायरेक्शन में विद यूजिंग कैरी, कैरी का यूज करके बेसिकली, ठीक है। सो इस इंस्ट्रक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज कुछ इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा आपको, RCRAH, 1। सो आपको क्या करना है, कितने बिट रोटेट करनी है, वो यहां पे गिवन है 1 बिट। सो यहां पे भी क्या करना है, 1 बिट रोटेशन है, यहां पे भी 1 बिट रोटेशन है, सिंगल बिट को रोटेट करना है। और कौन सा रजिस्टर आपके पास में, AH, मतलब वही A7, A8 और A9 और A10, A11, A12, A13, A14 एंड A15, ठीक है। A0 to A7 नहीं होगा, A8 to A15 होगा, ठीक है, A8 to A15। और यहां पे आपका होगा कैरी फ्लैग। अब क्या होगा, A15 का डाटा किस में जाएगा, A15 का A14 में जाएगा, A14 का A13 में जाएगा, A13 का 12, देन 12 का 11, 11 का 10 में, 10 का जाएगा 9 में, 9 का जाएगा 10 में, और 8 का डाटा जाएगा किसमें, कैरी फ्लैग में। अब A15 में क्या होगा, कैरी फ्लैग का जो डाटा है वो बेसिकली किस में चला जाएगा, A15 में चला जाएगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा, कर सकते हो आप बेसिकली।
अब सपोज ये सेम ऑपरेशन आप किस में कर सकते हो। अभी आपने बाइट ऑपरेशन परफॉर्म किया, हमने बाइट मतलब रजिस्टर का जो रजिस्टर जो भी आपने यूज में लिया वो 8 बिट का ही था। मेमोरी से भी कुछ इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाइट ऑपरेशन सब अभी सपोज सेम हम क्या कर सकते हैं, 16 बिट का भी रजिस्टर हो सकता है। सेम यहाँ पे रजिस्टर जो होगा वो 16 बिट का भी हो सकता है। RCR AX कोमा है, यहाँ पे क्या होगा कि A0 से लेके A15, A0 A1 से लेके A15 कुछ इस तरह से। अब वही राइट साइड में डायरेक्शन डाटा कुछ इस तरह से मूव होगा। A1 का A0 का अगेन CF में होगा और CF का डेटा है वो फिर से A15 में चला जाएगा। राइट, समझ में आया आपको? अब सपोज यहां तो सीखा हमने कि 1 बिट रोटेशन। अब मल्टी बिट रोटेशन अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे? सो सपोज फॉर मल्टी बिट रोटेशन, मल्टी बिट रोटेशन के लिए क्या करोगे आप? सो मल्टी बिट रोटेशन के लिए सेम रोटेशन होगा आपका RCR, रजिस्टर REG MEM कोमा CL। जितने भी टाइम आपको रोटेट करना है वो आप CL में स्टोर करवा दो बेसिकली, ठीक है। कुछ इस तरह से सपोज आपको गिवन हो RCR AH कोमा CL, और CL में सपोज आपने मूव करवा रखा हो क्या कि ये आपका CL का कंटेंट CL में है आपके पास में 04, ठीक है, और AH में आपके पास में है 8A, AH में आपके पास में 8A गिवन है। कैरी फ्लैग आपका है 1। तो आप किस तरह से करेंगे? ये खुद करोगे या करके बताऊं? चलो मैं करके बताता हूं आपको। तो डेटा लिख रहा हूं मैं पहले। सो डेटा देखो 8A, तो क्या हो जाएगा 8A में 1 0 0 0, ये 8 हो गया आपका। A क्या हो गया 1 0 1 0, ठीक है। और यहां पे मैंने लिखा कैरी फ्लैग, ये कैरी फ्लैग है आपका 1, ठीक है। अब क्या करना है आपको कि राइट में शिफ्ट करना है। सो ये फर्स्ट टाइम रोटेट कर रहा हूं मैं, फर्स्ट टाइम रोटेट कर रहा हूं, तो ये डाटा कहां जाएगा? यहां। तो इट मीन्स यहां से स्टार्ट होगा अब 1 0 0 0। देखो इसके नीचे लिखते रहो कुछ इस तरह से, गलती नहीं होगी आपसे। जैसे मैंने लिखा है बिट वाइज बिट, सेम बिट के नीचे इस तरह से लिखते रहो। तो क्या था 1 0 0 0 1 0 0 0, फिर आगे क्या है 1, फिर आगे क्या है 0, फिर आगे क्या है 1, फिर ये 0 कहां जाएगा? ये 0 यहां पे चला जाएगा। अब ये जो बचा 1 है वो 1 कहां पे आ जाएगा? यहां आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड, फर्स्ट रोटेशन, सेकंड रोटेशन कितनी टाइम रोटेट करना है आपको? CL में गिवन है 4 टाइम रोटेट करना है। तो सेकंड टाइम रोटेट कर रहा हूं मैं, वापस फिर से यहां से स्टार्ट होगा 1, फिर 1 0 0, 1 1 0 0 लिख दिया आपने। अब लिखना है आपको 0 1 0, ये 1 कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। कैरी फ्लैग में 0 था वो कहां चला जाएगा आपका? यहां चला जाएगा। थर्ड टाइम रोटेट करना है तो क्या होगा 0, ये यहां से स्टार्ट होगा 0 0 1 1 0 1 1 0, 0 1 1 0 लिख दिया आपने। अगेन लिखूंगा 0 0 1 0 0 0 1, ये 0 कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। तो कैरी फ्लैग में जो 1 था वो कहां चला जाएगा? यहां आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ टाइम अगर मैं इसको रोटेट करूं तो देखो क्या होगा 1 0 1 1 1 0 1 1 लिखा मैंने। फिर क्या होगा 0 0 0, ये 1 कहां चला जाएगा? यहां। और ये जो 0 था वो पहले से कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कंटेंट कि AH में बताओ क्या है, एग्जीक्यूशन के बाद में AH में क्या है, ये पूछ रहा है वो आपसे कि AH में क्या है, कैरी फ्लैग में बताओ क्या है।
सो AH में है आपका 58, देख लो, ठीक है। यह आपका 8, यह आपका 58 और कैरी फ्लैग में आपका है 1, ठीक है। आया समझ में आपको? अब जैसे आपने राइट में किया, सेम वैसे क्या करना है, लेफ्ट में करना हो तो RCL और REZ, ये रजिस्टर के लिए, मेमोरी कोमा 1। सो ये कितने बिट का रोटेशन है, यहां पे भी सिंगल बिट रोटेशन, सिंगल बिट रोटेशन, ठीक है, सिंगल बिट में रोटेट हो रहा है। तो सिमिलरली अगर सपोज मल्टी बिट अगर आपको रोटेट करना हो, मल्टी बिट में रोटेट करना हो, सो मल्टी बिट रोटेट के लिए क्या हो जाएगा, RCL, वही REZ रजिस्टर के लिए और मेमोरी के लिए, कोमा CL। सो कितने टाइम आपको रोटेट करना है वो आप CL में स्टोर कर दो। अब वो बेसिकली हम सीखेंगे कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म होता है बेसिकली, ठीक है। सो ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा, मैं एक ओके, रजिस्टर क्या हो सकता है, सिमिलरली रजिस्टर आपका 8 बिट भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, मेमोरी आपकी क्या हो सकती है, बाइट भी हो सकती है, मेमोरी आपका वर्ड भी हो सकती है, ठीक है ना। सेम प्रोसेस वही, जो ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें नहीं बताया तो ऐसे रजिस्टर 8 और 16 का नहीं हो सकता, सेम जो मैंने आपको रोटेट में स्टार्टिंग में बताया, सेम सबके लिए सेम है। अब ऑपरेशन समझते हैं हम कि बेसिकली ऑपरेशन क्या होगा। सो मैं बाइट ऑपरेशन कंसीडर कर रहा हूं यहां पे, तो A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6 और A7। अब की बार रोटेट किस साइड में कर रहे हैं हम, लेफ्ट साइड में रोटेट कर रहे हैं, मतलब इस साइड रोटेट कर रहे हैं। तो कैरी फ्लैग आप मैं यहां पे कंसीडर करूंगा, कैरी फ्लैग आया आपको समझ में। अब नेक्स्ट क्या होगा कि लेफ्ट में रोटेट कर रहा हूं, मतलब A0 का डाटा किस में चला जाएगा, A1 में चला जाएगा, A1 का डाटा किस में जाएगा, A2 में जाएगा, A2 का डाटा किस में जाएगा, A3 एंड सो ऑन, A4, A4 का A5, A5 का डाटा किस में जाएगा, A6, A6 का A7, अब A7 का किस में जाएगा, A7 का डाटा जाएगा कैरी फ्लैग में। अब देखो RCL का मीनिंग क्या हो जाएगा, RCL का मीनिंग क्या है, रोटेट राइट नहीं है, क्या है, रोटेट लेफ्ट और थ्रू कैरी, कैरी का यूज करके। अब A0 क्या है, वैकेंट है, तो A0 वैकेंट नहीं होगी, ये कैरी फ्लैग जो है वो किस में चला जाएगा, वो आपका A0 में चला जाएगा कुछ इस तरह से। सो ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, समझ में आया आपको, ठीक है। सो सिमिलरली वही CL, इसका मैं कोई एग्जांपल नहीं दे रहा हूं क्योंकि पीछे हमने डिस्कस कर लिया है सेम। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज, अभी हमने क्या पढ़ा कि रोटेट इंस्ट्रक्शन विद कैरी। सो विद कैरी में हमने क्या किया कि डाटा को लेफ्ट में और फिर राइट में, कुछ इस तरह से। ओके, अब सपोज वही रोटेट आपको करना है किसमें, विदाउट कैरी। सो अब हम पढ़ेंगे क्या, रोटेट विदाउट कैरी। सो उसमें फर्स्ट है आपका ROL, ठीक है। सो इंस्ट्रक्शन किस तरह से लिखेंगे इसको, ROL, रजिस्टर मेमोरी 1 लिखा, मतलब 1 बिट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, 1 बिट का रोटेशन है इसमें, ठीक है। सो आपको मल्टी बिट अगर रोटेशन करना है
1 बिट रोटेशन करना है तो मतलब 1 लिखा मैंने यहाँ पे, मल्टी बिट लिखना है तो उसमें CL में आप वैल्यू इंसर्ट करवा लेंगे, ठीक है, सेम है वो चीज़ सेम है। मैं बस जस्ट केवल ऑपरेशन डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिकली क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। बेसिकली डाटा जो है वो लेफ्ट में रोटेट होगा। सो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, दिस इज A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, और यहाँ पे भी वो रजिस्टर कितने 8 बिट का हो सकता है, 16 का हो सकता है, मेमोरी बाइट हो सकती है, वर्ड हो सकती है, ठीक है। सो डाटा लेफ्ट में होगा, मतलब इस साइड शिफ्ट होगा, तो मतलब कैरी फ्लैग मैं यहाँ पे लिख दूं, ठीक है। अब क्या होगा कि A0 का जो डाटा है वो A1 में जाएगा, A1 का डाटा A2 में जाएगा, A2 का डाटा A3 में जाएगा। वही सेम प्रोसेस हो रहा है, A3 से A4, A4 से A5, A5 से A6 और A6 से A7, और A7 का जो डाटा है वो बेसिकली वो कैरी फ्लैग में जाएगा, ठीक है। यहां तक प्रोसेस सेम है। अब A0 पे आपका क्या है, A0 पे अभी तक डाटा अवेलेबल नहीं है A0 पे। सो डाटा विदाउट, अब की बार आपको क्या करना है, विदाउट कैरी, विदाउट कैरी फ्लैग रोटेट करना है। सो कैरी फ्लैग का डाटा नहीं जाएगा, अब की बार A7 का जो डाटा है, सो A7 का डाटा आपका A0 में जाएगा, ये ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो इसको बोला मैंने क्या, रोटेट लेफ्ट विदाउट कैरी, विदाउट कैरी, ओके। सो सिमिलरली वी हैव ROR, रजिस्टर स्लैश मेमोरी, और मैं वही सिंगल बिट लेके कंसीडर कर रहा हूं। मल्टी बिट करना है तो क्या करूंगा मैं, CL में स्टोर करवा दूंगा, ठीक है। और रजिस्टर कितने बिट का हो सकता है, वही 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, मेमोरी बाइट भी हो सकती है, और मेमोरी जो है वर्ड भी हो सकती है, ठीक है। मैं जस्ट केवल ऑपरेशन आपको समझा रहा हूं कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा इस इंस्ट्रक्शन के बाद में। सो इसमें क्या होगा, रोटेट राइट, राइट में रोटेट होगा विदाउट कैरी, ठीक है, विदाउट कैरी। तो मैं कंसीडर करता हूं एग्जांपल। सो किस तरह से परफॉर्म होगा ये, A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। डाटा जो है वो क्या होगा, राइट में, राइट का मतलब A7 का डाटा किस में जाएगा, मैं यहां से पहले रब कर देता हूं ये, ठीक है। A7 का जो डाटा है, A7 का डाटा A6 में जाएगा, A6 का डाटा A5 में जाएगा, A5 का A4 में। सेम प्रोसेस हो रहा है, चाहे हम विदाउट कैरी करें या विद कैरी करें, बट यहां पे डिफरेंस आ रहा है। अब A0 का डेटा है वो कैरी फ्लैग में जाएगा, ठीक है। अब कैरी फ्लैग से A7 में नहीं जाएगा, कैरी फ्लैग से A7 में कब जाता, जब आप RCR कर रहे होते, विदाउट सॉरी विद कैरी कर रहे होते। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, विदाउट कैरी, ओके। तो क्या होगा, अब A0 का जो डाटा है, A0 का डाटा A7 में जाएगा, ओके। तो ये आपका रोटेशन का होगा। तो मैं एग्जांपल में बेसिकली इसलिए नहीं ले रहा हूं कि ये बेसिकली सिंपल सिंपल से ऑपरेशन है, कर सकते हो आप, ठीक है। सो नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑपरेशन। सो जैसे आपने अभी रोटेट इंस्ट्रक्शन पढ़ा था, 4 टाइप के रोटेट थे, कि विद और विदाउट
विद कैरी और विदाउट कैरी, लेफ्ट और राइट में। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, शिफ्ट में टू जो ऑपरेशन, शिफ्ट के टू जो ऑपरेशन है वो है बेसिकली लॉजिकल शिफ्ट, और टू ऑपरेशन है वो है अरिथमेटिक शिफ्ट। अरिथमेटिक शिफ्ट, ठीक है। सो लॉजिकल शिफ्ट बेसिकली अनसाइंड नंबर के लिए और अरिथमेटिक शिफ्ट साइंड नंबर के लिए बेसिकली यूज होता है। ओके, एक और चीज अगर आपको पता हो कि आपने अगर नोटिस किया हो, तो अगर डेटा अगर आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हो, डेटा अगर आप लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रहे हो, सपोज ये 1 0 था, ये अगर लेफ्ट साइड में शिफ्ट करो तो क्या होगा, इसका मीनिंग 1 0 0, तो इट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, बाय 2 से। देख लो कि इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखो 2, इसका डेसिमल इक्विवेलेंट लिखो 4। अब इस सपोज इसको भी अगर आप और शिफ्ट करो किस साइड, लेफ्ट साइड में, सो लेफ्ट साइड में कुछ इस साइड से शिफ्ट करो तो लेफ्ट में ये 1 यहाँ पे हो गया 0 0 0, सो इसका हो गया कितना 8, तो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 2 से। अब सिमिलरली अगर आप शिफ्ट आप राइट में करो तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डिवीजन परफॉर्म होगा, और बाय 2। ओके, सो दिस इज द वर्ड मैजिक ऑफ 0 and 1। ओके, और सपोज ये तो अब आप सिंगल सिंगल बिट अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, 2 अगर आप 2 बिट अगर आप शिफ्ट करो, ठीक है, शिफ्टिंग प्लेस अगर ये 1 1 बिट अगर 1 1 प्लेस अगर शिफ्ट हो रहा था, सिमिलरली यहां पे 1 बिट अगर आप या तो लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे या राइट शिफ्ट कर रहे थे, सिंगल बिट आप शिफ्ट कर रहे थे, तो मल्टीप्लाई हो रहा था और डिवाइड हो रहा था बाय 2 से। अब अगर सपोज सेम यही शिफ्टिंग लेफ्ट और राइट साइड जो शिफ्टिंग है बेसिकली वो 2 प्लेस शिफ्टिंग हो, चाहे लेफ्ट में हो चाहे राइट में हो, तो बेसिकली डिवाइड या मल्टीप्लाई जो होगा वो किसका हो जाएगा, बाय 4। ओके, समझ में आया आपको? ओके, सो अब मैं कुछ एक इंस्ट्रक्शन हम स्टडी करेंगे, वो SAL रजिस्टर मेमोरी 1। अब रजिस्टर वही 8 बिट का हो सकता है, 16 बिट का हो सकता है, मेमोरी भी बाइट हो सकती है, वर्ड हो सकती है, ठीक है ना। SAL की बात हो रही है, SAL, और बेसिकली SAL का मीनिंग हुआ शिफ्ट, कौन सा शिफ्ट है, अरिथमेटिक शिफ्ट हुआ, और SAL और SHL जो है बेसिकली दोनों का ऑपरेशन सेम ही है, सेम ऑपरेशन है, और लिखा भी कुछ ऐसा ही जाएगा, SHL रजिस्टर कोमा मेमोरी 1। ठीक है, कितने टाइम शिफ्ट करना है वो आपने यहां पे लिख दिया, ठीक है। सो ये है आपका शिफ्ट, अरिथमेटिक शिफ्ट और शिफ्ट लॉजिकल शिफ्ट, इसको बोलेंगे लॉजिकल शिफ्ट। लेकिन लॉजिकल शिफ्ट कौन सा, कौन सी डायरेक्शन में, एल मतलब लेफ्ट साइड में, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या हुआ, शिफ्ट अरिथमेटिक, और नीचे वाले का क्या हो जाएगा, लॉजिकल। नीचे वाले का मतलब इसका लॉजिकल और लेफ्ट, ये मीनिंग हुआ उसका, लेफ्ट में शिफ्ट करना है, ठीक है। सो चलो देखते हैं क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सो वी वर डिस्कसिंग SAL और SHL एंड दैट इज रजिस्टर मेमोरी और 1। चलो मैं इसको कुछ इस तरह से लिखूं कि हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, SAL BL, 1। कितने टाइम शिफ्ट करना है, 1 टाइम। मल्टीपल बिट शिफ्ट भी कर सकते हैं हम यहां पे, मल्टीपल बिट शिफ्ट जैसे हमने रोटेट में किया था, क्या उस टाइम
CL में वैल्यू लोड की थी, यहाँ पे भी CL में वैल्यू लोड करेंगे। तो CL जो रजिस्टर है बेसिकली काउंट रजिस्टर है, हमने पढ़ा भी था बेसिकली। तो यहाँ 8086 में बेसिकली जो रजिस्टर है वो डेडिकेटेडली किसी पर्पज, हर एक रजिस्टर का अपना एक पर्पज है, ठीक है। सो इस तरह से मैंने लिखा, तो इसका मतलब आप अब जो शिफ्टिंग होगी वो क्या होगा, लेफ्ट साइड में होगी, L मतलब लेफ्ट। यहाँ अरिथमेटिक या लॉजिकल दोनों में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होना है, बता चुका हूं मैं आपका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूं आपका कि BL है, मतलब आपके पास में डेटा जो गिवन है वो है B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, ठीक है। डाटा किस साइड शिफ्ट हो रहा है, लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है, तो कैरी फ्लैग भी कहां होगा, यहां होगा कैरी फ्लैग, ठीक है। अब B0 का जो डेटा है, अब B0 का लेफ्ट में शिफ्ट करना है, तो सेम वैसे ही शिफ्ट करो बच्चों जैसे आप करते हुए आए हैं। B0 का जो डेटा है, तो B0 का डेटा आपने शिफ्ट करना है B1 में, ठीक है। अब B1 का डाटा शिफ्ट करना है क्या, B2 में। B2 का डाटा शिफ्ट करना है B3 में। B3 का शिफ्ट करना है B4 में। B4 का शिफ्ट करना है B5 में। B5 का सिमिलरली B6, B6 का B7 में। और B7 का जो डेटा है वो आपको शिफ्ट करना है किसमें, कैरी फ्लैग में। ये सेम प्रोसेस आप रोटेट में भी आपने किया है, बट डिफरेंस क्या है, सो जैसे ही B0 आपका B0 पे, सो रोटेट ना करके B0 के जो प्लेस है उस पर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट 0, 0 इंसर्ट करते जाना, ठीक है। आई बात समझ में आपको कि 0 आपको डाटा इंसर्ट कर देना, बस यही ऑपरेशन परफॉर्म करना आपको। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ इस टाइप का। सपोज डाटा ये है 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1, ठीक है। चलो ये लिया मैंने 1 0 1 1, वन जीरो वन वन। अब देखो क्या है, गलती कभी नहीं होगी, बिट वाइज बिट नीचे कुछ इस तरह से लिखते हैं। जब लेफ्ट में शिफ्ट करना है तो ये वाला 1 मैं यहां लिख दूं, ये वाला 1 मैं यहां लिख दूं, उसके बाद में क्या है 0, ये 0 मैंने यहां लिख दिया, ये 1 है यहां लिख दिया, अगेन ये 1 यहां लिख दिया, ये 0 मैंने यहां लिखा और ये 1 मैंने यहां लिख दिया, बचा ये 1। ये 1 अब क्या होगा, ये कैरी फ्लैग में जाएगा। अब ये 1, अब ये जो 0th बिट है उसमें आप क्या लिख दो, 0 लिख दो। ये हो गया 1 बिट रोटेशन आपका, रोटेशन क्या 1 बिट शिफ्टिंग हो गई आपकी। शिफ्टिंग किसमें, आपका अरिथमेटिक टाइप की शिफ्टिंग और लॉजिकल टाइप की शिफ्टिंग, दोनों में एक ही ऑपरेशन परफॉर्म होगा बेसिकली। मल्टीपल बिट जो शिफ्ट है वो भी कर सकते हैं यूजिंग CL। सो जितने टाइम आपको शिफ्ट कराना है वो CL में आप इंसर्ट कर दो, उतने ही क्या हो जाएंगे, 0 आ जाएंगे इसमें, ठीक है। आया आपको समझ में। सो नेक्स्ट है आपका SHR। सो जैसे आपने SHL पढ़ा था, SHL शिफ्ट लॉजिकल लेफ्ट, ठीक है। सो यहां पे क्या हो जाएगा, शिफ्ट लॉजिकल राइट, ठीक है। सो बेसिकली क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, वही ये मैं डायरेक्ट ऑपरेशन बता दूं। चलो सिंटैक्स मैं ये लिख देता हूं आपको किस तरह से लिखा जाएगा। SHR कैपिटल में रिक्वायर्ड नहीं, स्मॉल भी लिखा जा सकता है। SHR रजिस्टर कोमा मेमोरी कोमा, मल्टीबिट करवाना है तो CL में लिख दो, और मल्टीबिट नहीं करवाना, सिंगल टाइम शिफ्ट करना है तो सिंगल टाइम 1 कर दो आप, ये 1 टाइम शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर वही 8 बिट हो सकता है, 16 बिट हो सकता है, बाइट हो सकती है मेमोरी, वर्ड हो सकती है मेमोरी, कुछ भी, ठीक है। मैं जस्ट केवल ऑपरेशन बता रहा हूँ कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म होगा। सो सपोज ऑपरेशन मैं कंसिडर करता हूँ कि आपके पास में जो है A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 और A7। शिफ्ट कहां हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है राइट साइड, तो क्या हो जाएगा,
A7 का किस में जाएगा, A6 में, A6 टू A5, A5 टू A4, A4 टू A3, A3 टू A2, A2 से A1, A1 से A0, A0 को जो बिट है वो किस में चली जाएगी, कैरी फ्लैग में चली जाएगी। ठीक है, अब SHL में हमने क्या किया था कि A0 जो बिट मूव हो गई थी, या A0 जो बिट है वो शिफ्ट हो गई थी A1 पे, और A0 की बिट की जगह हमने क्या कर दिया था कि 0 इंसर्ट कर दिया था। अब कौन सी बिट शिफ्ट हुई है, A7 बिट शिफ्ट हुई है। A7 बिट अगर शिफ्ट हुई है तो A7 पे आप जो इंसर्ट करोगे वो यहां पे इंसर्ट कर दोगे, इंसर्ट 0, 0 इंसर्ट कर दोगे। आई बात आपको समझ में? क्या करना है बेसिकली कि राइट साइड आप क्या करते जा रहे हो, शिफ्ट करते जा रहे हो। ये प्लेस क्या हो जाएगा, वैकेंट, इस प्लेस पे क्या कर दो, 0 इंसर्ट कर दो। SHL में क्या कर रहे थे कि A0 से A1, A1 से A2 ऐसे शिफ्ट हो रहा था। A0 जो थी वो वैकेंट थी, सो A0 जैसे ही आपकी A0 पे डाटा कुछ भी नहीं था तो A0 पे इंसर्ट करवा दिया हमने 0। सो यही बेसिकली डिफरेंस है SHL और SHR में बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट है आपका SAR, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट, शिफ्ट अरिथमेटिक राइट। और ये किस तरह से लिखा जाएगा, सेम जैसे SAR रजिस्टर कॉमा मेमोरी, और वन टाइम अगर आप शिफ्ट कर रहे हो तो 1, मल्टीपल टाइम अगर आपको शिफ्ट करवाना है तो ये CL में वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है, सो सिमिलरली वही राइट टाइम आपको शिफ्ट, ओके, रजिस्टर हो सकता है 8 बिट का, 16 बिट का, मेमोरी बाइट हो सकती है, वर्ड हो सकता है। ठीक है, तो यहां लिखा मैंने कि दिस इज व्हाट A0, A1, A2 बाइट ऑपरेशन कंसीडर कर रहा हूं मैं, A3 इजी के लिए, ताकि ऑपरेशन वही परफॉर्म होना चाहिए, बाइट हो चाहिए, रजिस्टर 8 बिट का हो चाहिए, 16 बिट का हो, A5, A6 और A7 किस साइड शिफ्ट होगा, राइट में शिफ्ट होगा। तो ये लो, A7 का किस में जाएगा, A6 में, A6 टू A5, A5 से A4, 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0। अब 0 का किस में जाएगा, कैरी फ्लैग। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या किया था, लॉजिकल शिफ्ट में 0 इंसर्ट करवाया था, बट यहां ये स्पेशल टाइप का इंस्ट्रक्शन है कि A7 को ही ये कॉपी करेगा बेसिकली। ठीक है, सो इसका मीनिंग हुआ MSB बिट will be MSB bit will be copied। सो जो MSB बिट है वो क्या हो जाएगी, कॉपी हो जाएगी सिंपल, और कुछ भी नहीं होगा। कैरी फ्लैग आपका अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सो ये ऑपरेशन हुआ आपका SAR। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है आपका कंपेयर। ठीक है, सो कंपेयर में तो बेसिकली क्या होगा कि फ्लैग ही इफेक्ट होंगे। ओके, फ्लैग तो इन सब में इफेक्ट होंगे, लेकिन कंपेयर में डाटा सेव नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, लेकिन डाटा कंपेयर करेगा वो बेसिकली। सो मैं इंस्ट्रक्शन लिखता हूं CMP कंपेयर के लिए, और किस किस का कंपेरिजन, रजिस्टर या मेमोरी 2 कॉमा रजिस्टर मेमोरी 1, इन दोनों का कंपैरिजन होगा। और फिर से मैं बता दूं आपको कि मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन, ये सब में आपको हो गया होगा कि सब में बता रहा हूं आपको कि मेमोरी टू मेमोरी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, मेमोरी टू मेमोरी ऑपरेशन आपका परफॉर्म नहीं होगा। अब इसमें क्या परफॉर्म होगा, तो ऑपरेशन परफॉर्म होगा क्या, REZ टू रजिस्टर 2 या मेमोरी 2 में से रजिस्टर और या फिर मेमोरी 1 माइनस होगी। ठीक है,
रिजल्ट आपका कहीं भी स्टोर नहीं होगा, रिजल्ट स्टोर नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ओनली फ्लैग विल बी अफेक्टेड। ओनली फ्लैग विल बी अफेक्टेड, ठीक है, और रिजल्ट आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। अब फ्लैग अफेक्ट किस तरह से हो सकते हैं कि सपोज आप क्या कर रहे हो कि a माइनस बी कर रहे हो, कुछ ऐसा ही तो कर रहे हो, तो दो कंडीशन हो सकती है कि a ग्रेटर देन क्या हो, b हो। a ग्रेटर देन अगर b हो, और या क्या हो सकता है a लेस देन b हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है a इक्वल टू b हो सकता है। अगर a इक्वल टू b हो तो क्या हो जाएगा, जीरो फ्लैग जो है वो क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा, रिजल्ट जीरो हो जाएगा, रजिस्टर 2 माइनस जीरो फ्लैग सेट हो जाएगा। और a लेस देन b है, a अगर लेस देन b है, सिमिलरली ऐसे ही क्या हो जाएगा, ये फ्लैग सेट हो जाएंगे। a लेस देन b है तो क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग आपका क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग आपका सेट हो जाएगा, और साइन फ्लैग जो है वो भी क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। बेसिकली a इज ग्रेटर देन b है, ना तो जीरो फ्लैग सेट होगा, ना कैरी फ्लैग आपका सेट होगा, और ना साइन फ्लैग सेट होगा आपका, ठीक है। तो ये मतलब रीसेट होंगे ये ZF, CF और SF, ठीक है। सो बेसिकली ये आपका हुआ कंपेयर इंस्ट्रक्शन का। सो कंपेयर आप बेसिकली ऐसा नहीं है कि कंपेयर आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो कि कंपेयर, ओके वन मोर, कंपेयर कुछ आप इस तरह से भी कर सकते हो कि CMP रजिस्टर मेमोरी कॉमा डेटा, इस तरह से भी कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, सपोज अगर रजिस्टर है तो रजिस्टर माइनस डेटा, रजिस्टर और डेटा जो अभी इमीडिएट डेटा गिवन है उन दोनों का क्या होगा, कंपैरिजन होगा। और फ्लैग क्या होगा, केवल फ्लैग मॉडिफाई होंगे, केवल फ्लैग अफेक्ट होंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंपेयर इंस्ट्रक्शन। एक इंस्ट्रक्शन और बचता है आपका टेस्ट। अब टेस्ट इंस्ट्रक्शन बेसिकली इसमें भी क्या होगा, बेसिकली फ्लैग ही मॉडिफाई होंगी। कैसे परफॉर्म होगा ये, टेस्ट एंडिंग के लिए यूज होता है बेसिकली, रजिस्टर मेमोरी 2 तो क्या होगा बेसिकली कि रजिस्टर 2 या मेमोरी 2 जो है उसका कंटेंट और रजिस्टर और मेमोरी 1 का कंटेंट, रिजल्ट कहीं सेव नहीं होगा, रिजल्ट सेव नहीं होगा, ओनली फ्लैग विल बी मॉडिफाइड। मतलब सेट और रीसेट होंगे। अब यही आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो जैसे मैंने लिखा है, टेस्ट इमीडिएट डेटा भी गिवन हो सकता है आपको कि रजिस्टर स्लैश मेमोरी कॉमा डेटा, क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, एंड होगा। अब रजिस्टर 8 बिट का, 16 बिट का, मेमोरी बाइट हो सकती है, वर्ड हो सकती है, सेम ऑपरेशन, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस। So thank you. So in this class we have discussed the different लॉजिकल टाइप इंस्ट्रक्शन। उसमें आपने लॉजिकल टाइप का इंस्ट्रक्शन स्टडी किए, डिफरेंट टाइप के शिफ्टिंग के, डिफरेंट टाइप के आपके रोटेटिंग टाइप के इंस्ट्रक्शन आपने स्टडी किए, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन स्टडी करेंगे, ब्रांच इंस्ट्रक्शन, ठीक है।